हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल रेड डायरेक्शंस बाय सलीम। आज की ये वीडियो हम कंप्यूटर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, चाहे वो नेशनल लेवल का हो जैसे एसएससी वगैरह या फिर स्टेट एग्ज़ाम हो जैसे जेके एसएसपी, ठीक है, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस कंप्यूटर के टॉपिक का नाम है नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट एंड ईमेल। ये सारे टॉपिक्स हम जो हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। रिपीट करता हूँ कि इस चैप्टर का नाम है नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, ठीक है, देन एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट एंड ईमेल। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। हाँ, तो जो अभी जेके एसएसपी का पंचायत और अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ एमएस वर्ड, ठीक है। हाँ, एमएस वर्ड वो होता है जिसमें हम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लिखते हैं, ठीक है ना। विंडोज़, लेट्स स्टार्ट। विंडोज़ एंड एमएस ऑफिस आर माइक्रोसॉफ्ट्स टू मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स। कौन से? विंडोज़ और एमएस ऑफिस, ठीक है। वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अदर इज बंडल सूट comprising एमएस वर्ड। वर्ड मीन्स वर्ड प्रोसेसर, वर्ड इज़ फॉर वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। हाँ, कि विंडोज़ और एमएस ऑफिस जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के दो पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं। इनमें से एक जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरा जो है बंडल सूट है, जिसमें एमएस वर्ड भी आ जाता है, एमएस एक्सेल भी आता है। एमएस एक्सेल में जो है एक्सेल में पावर स्प्रेडशीट होती है, देन एमएस पावर पॉइंट जिसमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, देन एमएस एक्सेस जिसमें रेशनल डेटाबेस होता है, देन एमएस आउटलुक, एमएस पब्लिशर एंड एमएस फ्रंट पेज, ठीक है। टुगेदर दीज, हाँ, तो रिपीट करता हूँ कि विंडोज़ and MS Office are Microsoft two most important popular programs. One is operating system and the other is bundle suite comprising MS Word, Word for word processor, then MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, MS Publisher and MS Front Page, ठीक है ना। Together these two flagship programs have a worldwide voice-like grip and a near monopoly over the personal computer package software market, ठीक है। Not only are they the most preferred and widely used programs in this segment, they have become a benchmark against which all other products are evaluated, ठीक है ना। If all this sounds like an ad copy of Microsoft Office, it was not meant to be, ठीक है ना। From your and our point of view, this simply means that once having learnt and mastered these packages, in spite of a high rate of technological obsolescence, ठीक है, in the computer industry, the skills acquired would never go waste, no matter where you work and where you do. MS Office and especially MS Word, MS PowerPoint and MS Excel would be of great use to computer users, ठीक है। Microsoft is a full-featured word processing program which can be used for any work involving creating and managing text, ठीक है ना। You can use it from the simplest to the most complex of word processing applications, ठीक है। Using Word, you can write letters and reports, prepare bills and invoices, prepare office stationery, letterheads, envelopes, forms, etc. Design brochures, pamphlets, newsletters, magazines, etc. ठीक है। In short, you would find it extremely difficult to think of a word processing feature not available in Microsoft Word, ठीक है। For most tasks, Word means MS Word offers several ways of doing the same thing. It is left to the user to find which one is preferable to him. Since covering all the different methods for doing the same task would require a book running into 1,000 pages, we have taken the liberty to illustrate the methods we consider the most user-friendly. As you gain more proficiency in using Word, ठीक है, you will yourself discover other methods of doing your task, ठीक है।
इसमें ना स्टार्टिंग देखते हैं, स्टार्टिंग MS वर्ड को स्टार्ट करना, ठीक है ना। टू स्टार्ट वर्ड, क्लिक वंस ऑन द स्टार्ट बटन, चूज ऑल प्रोग्राम्स एंड क्लिक वंस ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. On starting word you would see a word main screen with the tip of the day, means unless somebody had instructed not to do so in the last session, ठीक है ना. These tips are words way of teaching you new tricks and techniques while you work. Most of these tips are quite informative and some are even entertaining. Read the tip. If you have the time and inclination, then click once on OK button in the dialog box to start working on the document, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज MS वर्ड स्क्रीन लेआउट, ठीक है. कैसी स्क्रीन होती है MS वर्ड की, ठीक है. पार्ट्स ऑफ अ वर्ड विंडो इज डिस्क्राइब्ड. पहले होता है टाइटल बार, ठीक है. टाइटल बार, हाँ. This title bar tells you which application package is currently running and which document is currently open, ठीक है. ये टाइटल बार कहता है. उसके बाद आ जाता है इसमें मेन्यू बार, ठीक है ना. मेन्यू बार इज द ट्रेडिशनल विंडो स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है. When you point to any menu title and click once with the mouse, the menu will open, displaying all the commands available under this menu title, ठीक है. Clicking on the desired command would tell Word to execute that command. Some commands have ellipses, means last में 3 dots होते हैं in front of them, ठीक है. हाँ, these commands have further sub commands appearing dimmed cannot be executed unless the prerequisite functions required by that command have been performed. For example, you cannot use a copy or cut command from edit menu unless you have selected a piece of text first, ठीक है. Many commands also have a keyboard shortcut specified against their names, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज स्टैंडर्ड टूल बार. स्टैंडर्ड, ये हमने मेन्यू बार के बारे में पढ़ा. अब स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना. टूल बार्स कंटेन बटन्स, ड्रॉप डाउन menus and other controls that help you to quickly alter that appearance and arrangement of documents by executing a variety of word commands. हाँ, टूल बार्स आर वेरी हेल्पफुल एंड कन्वीनियंट इन क्विकली एग्जीक्यूटिंग कमांड्स विदाउट हैविंग टू गो थ्रू द मेनस, ठीक है. द स्टैंडर्ड टूल बार कंटेन्स आइकन्स फॉर बेसिक फंक्शंस लाइक ओपनिंग फाइल्स, सेविंग फाइल्स, प्रिंटिंग फाइल्स, कट, कॉपी, पेस्ट एटसेट्रा, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है ना. फॉर्मेटिंग, FORMATTING, फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है ना. This contains icons for changing the look of your text, that is called formatting in computer jargon, ठीक है. For example, there are icons for changing font styles, font sizes, text alignment, etc. ठीक है. तो ये हो गया formatting toolbar. नेक्स्ट रूलर, RULER, रूलर, ठीक है ना. द रूलर लेट्स यू मेक चेंजेस. द रूलर लेट्स यू make changes in margins and indents and helps in creating document as per required dimensions, ठीक है. नेक्स्ट इज स्क्रॉल टूल्स, ठीक है. हाँ, स्क्रॉल टूल helps you to travel within your document. You can go anywhere, up and down, right and left in your document mainly by 2 ways. हाँ, number 1, using the horizontal and vertical scroll bars with the help of a mouse, or using the keyboard to press पेज अप, PG अप, ठीक है ना. PG अप मीन्स पेज अप, पेज डाउन, PG DN, देन होम एंड एन एरो कीज, ठीक है. हाँ, ये हो गया स्क्रॉल टूल्स. नेक्स्ट इज स्टेटस बार, ठीक है. स्टेटस बार, हाँ. स्टेटस बार आल्सो कॉल्ड स्टेटस एरिया. इट इज़ नॉर्मली द लास्ट लाइन ऑन योर स्क्रीन. दिस गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वर्क, ठीक है. सॉरी, हाँ, क्या इन्फॉर्मेशन देता है? पहले देता है current page, then section number, then current or total pages in the document, then current cursor position where the cursor is presently located, then current line number, record macro, where macro recording is on or not, ठीक है. ये भी पता चलता है स्टेटस बार से. देन ट्रैक रिवीजन मीन्स whether revisions have been made or not. देन एक्सटेंड सिलेक्शन, ठीक है. ये भी स्टेटस बार से पता चलता है. देन ओवर टाइप मोड, ठीक है, वेदर यू आर इन इंसर्ट मोड और ओवर राइट मोड, ठीक है. देन
हेल्प फॉर वर्ड परफेक्ट यूजर्स, वेदर ऑन और नॉट, ठीक है ना। तो ये सारा जो है स्टेटस बार में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्सर, ठीक है ना। कर्सर, कर्सर इज आल्सो कॉल्ड इंसर्शन पॉइंटर। कर्सर को जो है इंसर्शन पॉइंटर भी बोलते हैं। इट डिनोट्स द प्लेस वेयर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और एनी अदर आइटम वुड बी प्लेस्ड व्हेन यू टाइप, ओवरराइट और इंसर्ट इट, ठीक है ना। हाँ, दिस कर्सर दिस लुक्स लाइक अ टॉल स्किनी टूथपिक एंड कीप्स ब्लिंकिंग सो दैट यू कैन लोकेट इट इजिली, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग इज मोस्ट पॉइंटर, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग इज मोस्ट पॉइंटर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज मोस्ट पॉइंटर, ठीक है। व्हेन योर मोस्ट पॉइंटर लुक्स लाइक एन आई बीम, ठीक है, आई बीम। व्हेन योर mouse pointer looks like an I beam, you should be able to move it freely about the screen, ठीक है। This is used for either placing the cursor at the desired place, means take the mouse pointer there and click, or choosing any command either from the menu or from toolbars, ठीक है ना। The mouse pointer changes shape when in the process of doing certain task, and at this time the cursor disappears, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हाँ, क्रिएटिंग, नेक्स्ट हेडिंग इज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हाँ, वर्ड ऑलवेज, वर्ड मीन्स एम एस वर्ड, ठीक है ना। दिस वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स बाय ओपनिंग एन अनटाइटल्ड नॉर्मल डॉक्यूमेंट सो दैट यू कैन बिगिन फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। दिस नॉर्मल डॉक्यूमेंट इज बेस्ड अपॉन all the default values which is another name for predefined settings, ठीक है, provided by Word, ठीक है, and that is standard page size, standard margins, font type and size, etc, ठीक है ना। You can change these settings and create your own customized documents based upon new settings, ठीक है। You can also save your new settings in a specific kind of file called a template file, which will help you to quickly create documents based upon these customized settings, ठीक है। You can create your own letterheads, means fact sheets, invoices, memos, etc. as templates so as to save substantial work and and printing cost, ठीक है ना। Since these templates are like ready-made pre-printed forms, all you have to do is fill in the blanks, very similar to filing in paper forms manually, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ टू टाइप इन वर्ड, ठीक है। वर्ड में कैसे टाइप करें एम एस वर्ड में, ठीक है। वंस वर्ड हैज़ बिन स्टार्टेड यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है। व्हेन यू प्रेस कैरेक्टर कीज ऑन द कीबोर्ड यू कैन सी द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स अपीयर इन द वर्ड विंडो, ठीक है। यूज़ द स्पेस बार व्हेन यू वांट टू सेपरेट कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। use the tab key when you want to move the cursor or text from one tab stop to another, and also when you want to create a blank longer than one space between words, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज इंसर्ट एंड ओवरटाइप मोड्स, ठीक है। इंसर्ट एंड ओवरटाइप मोड्स, ठीक है। हाँ, वर्ड नॉर्मली यूजेस द इंसर्ट मोड। इन दिस मोड वर्ड डज नॉट ओवरटाइप द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बट pushes it forward by pressing the INS की, ठीक है ना। इंसर्ट की मतलब कि, ठीक है ना। यू कैन स्विच टू ओवरटाइप मोड। इन दिस मोड द न्यू टेक्स्ट रिप्लेसेस द ओल्ड टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर, ठीक है। द स्विच बिटवीन द ओवरटाइप एंड इंसर्ट मोड्स, ठीक है। हाँ, प्रेस द इंसर्ट की, ठीक है। टू स्विच बिटवीन ओवरटाइप एंड इंसर्ट मोड प्रेस द इंसर्ट की, ठीक है ना। In the insert mode, when you place the cursor in the middle of two words and start typing, the new text is inserted between the two words, and all the text below this line is automatically adjusted. In the overtype mode, when you place the cursor in the middle of two words and start typing, the new text overrides the previous one, ठीक है। Now main options, ठीक है। हाँ, main options में आ गया जैसे हाँ, फाइल मेन्यू, ठीक है ना। नंबर 1 इज फाइल मेन्यू, ठीक है। फाइल मेन्यू डिस्प्लेज द कमांड्स टू ओपन अ न्यू और एन एग्जिस्टिंग फाइल, सेव्स और चूजेस
saves or closes the file, prints and defines the page settings. It also has an option to display the file properties along with the list of 4 most recently used files. ठीक है, फाइल. देन आ गया एडिट, EDIT, एडिट. ठीक है ना. एडिट मेन्यू डिस्प्लेज द कमांड्स टू एडिट और फॉर्मेट योर टेक्स्ट, find and replace particular word or line. ठीक है. It also has an option to cut, copy and paste a part or a paragraph. ठीक है, एडिट में. ठीक है, हाँ, फाइल हो गया, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू. नेक्स्ट देखते हैं व्यू मेन्यू. ठीक है ना. हाँ, व्यू मेन्यू डिस्प्लेज द कमांड्स टू सेलेक्ट द टूल बार्स टू बी डिस्प्लेड ईच टाइम यू ओपन द विंडो. You open the word window to hide or show the task pane, grid lines, header and footer, paragraph etc. ठीक है ना, पैराग्राफ मार्क्स etc. ठीक है, ये हो गया व्यू मेन्यू. नेक्स्ट इज इंसर्ट मेन्यू. ठीक है ना. इंसर्ट मेन्यू डिस्प्लेज द कमांड्स टू इंसर्ट पेज ब्रेक्स, सेक्शन ब्रेक्स. ठीक है ना. इट आल्सो डिस्प्लेज द ऑप्शंस टू इंसर्ट पिक्चर्स, डायग्राम्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, फाइल्स, ऑब्जेक्ट्स, बुकमार्क्स, हाइपरलिंक्स एट्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर्मेट, FORMAT, फॉर्मेट. ठीक है ना. नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर्मेट. ठीक है ना. फॉर्मेट मेन्यू अलाउज यू टू फॉर्मेट योर टेक्स्ट पैराग्राफ बाय चेंजिंग टेक्स्ट फॉन्ट्स, एडिंग बुलेट्स और नंबरिंग, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, टैब्स, कॉलम एट्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज टूल मेन्यू. ठीक है ना. Tool menu displays the commands to check for spelling mistakes and grammatical errors, languages, fix broken text, compare and merge documents, track changes etc. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज टेबल मेन्यू. ठीक है ना. टेबल मेन्यू. Table menu displays the commands to draw, modify and format tables. It also has options to define the formulas for calculations in the tables. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज विंडोज. ठीक है ना. नेक्स्ट हेडिंग इज विंडोज. Windows menu display the options to create a new window, splits an existing window or arranges all the open windows. ठीक है. It also displays the currently open files. ठीक है. कौन? विंडो मेन्यू. नेक्स्ट इज हेल्प डिस्प्ले. हेल्प. ठीक है ना. हेल्प डिस्प्लेज द कमांड्स टू लॉन्च MS Word help, hides or shows the office assistant. ठीक है. तो ये सारे हमने मेन्यू ऑप्शंस पढ़े. ठीक है ना. मेन्यू ऑप्शंस. अब नेक्स्ट देखते हैं टूल बार्स. ठीक है ना. टूल बार्स. ठीक है. इसमें आगे पहला स्टैंडर्ड टूल बार. ठीक है ना. हाँ, विद स्टैंडर्ड टूल बार यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क. ठीक है. स्टैंडर्ड टूल बार से हम फॉलोइंग फंक्शंस कर सकते हैं. कौन सा? न्यू. ठीक है. न्यू क्रिएट्स अ न्यू डॉक्यूमेंट. देन ओपन. दिस ओपन ऑप्शन opens an existing document. Then save option. Save option saves your document for future use. Then email. ठीक है ना. email option send your document as an email through MS Outlook. ठीक है. then print option. ठीक है ना. it prints your document on paper. next is print preview option. ठीक है ना. हाँ, it allows you to see your document as it will look when printed. ठीक है. next is spell check. ठीक है. स्पेल चेक्स ऑप्शन. ठीक है ना. इट चेक्स स्पेलिंग्स एंड ग्रामर ऑफ योर करंट डॉक्यूमेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज कट ऑप्शन. कट ऑप्शन मूव्स द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन टू द क्लिप बोर्ड. ठीक है ना. नेक्स्ट इज कॉपी ऑप्शन. ठीक है ना. इट कॉपी मूव्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर प्लेस. ठीक है. नेक्स्ट इज पेस्ट. ठीक है ना. पेस्ट ऑप्शन कॉपीज द कट और कॉपी टेक्स्ट सिलेक्शन टू द इंसर्शन पॉइंट. नेक्स्ट इज अनडू ऑप्शन. अनडू ऑप्शन रिवर्सेस द लास्ट कमांड. ठीक है. देन रीडू ऑप्शन रिवर्सेस द एक्शन ऑफ द लास्ट कमांड. जो लास्ट कमांड का एक्शन है उसको रिवर्स कर देता है. कौन? रीडू. ठीक है ना. ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना. जो अनडू है ये रिवर्सेस द लास्ट कमांड, और जो रीडू है इट रिवर्सेस द एक्शन ऑफ द लास्ट कमांड. ठीक है ना. हाँ, अनडू जो है ये लास्ट कमांड को रिवर्स कर देता है, और रीडू जो है ये लास्ट कमांड के एक्शन को रिवर्स कर देता है. ठीक है. तकरीबन सिमिलर ही. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज टेबल्स ऑप्शन. ठीक है ना. टेबल्स ऑप्शन इंसर्ट्स कस्टमाइज टेबल्स इन योर डॉक्यूमेंट. ठीक है. हाँ, तो ये सारे जो है हमने देखे. क्या ये देखे हमने स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में. ठीक है. अब देखते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार. ठीक है ना.
हाँ, स्टैंडर्ड टूल बार का हो गया। हाँ, टूल बार्स का देख रहे हैं, उसमें स्टैंडर्ड टूल बार में ये ऑप्शन हमने पढ़े। अब हम देखते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार का, ठीक है ना। द फॉर्मेटिंग टूल बार हेल्प्स यू टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, ठीक है। कौन कौन से टास्क? पहला आ गया फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड कलर, ठीक है ना ऑप्शन। इट चेंजेस द फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड कलर, ठीक है। देन बुलेटिंग, BULLETING, बुलेटिंग ऑप्शन, ठीक है ना। इट अप्लाइज बुलेट्स टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। देन नंबरिंग ऑप्शन, इट अप्लाइज नंबरिंग टू योर सिलेक्टेड लाइन्स और पैराग्राफ। देन अलाइनमेंट, ठीक है। हाँ, ये नंबरिंग वाला इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिकली नंबरिंग लग जाती है, ठीक। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट, ठीक है ना। अलाइनमेंट हेल्प्स योर पैराग्राफ मीन्स लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लाइन स्पेसिंग डिफाइंस द डिस्टेंस बिटवीन योर लाइन्स, ठीक है। देन ये सारा फॉर्मेटिंग टूल बार में है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज राइट इंडेंटिंग, ठीक है। इट इंडेंट्स योर सेलेक्टेड पैराग्राफ टू द राइट। देन लेफ्ट इंडेंटिंग, इट इंडेंट्स योर सेलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट, ठीक है। देन हाईलाइटर, ठीक है ना। इट हाईलाइट्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द कलर सेलेक्टेड, ठीक है ना। तो अब जो है इस वीडियो में हम कुछ वर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख लेते हैं, वर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनना, ठीक है। ये शॉर्टकट्स ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर कोई फाइल ओपन करनी हो तो हम कैसे करेंगे? कंट्रोल O दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल O दबाएंगे, फाइल जो है ओपन हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर न्यू फाइल ओपन करनी हो मतलब कि तब क्या करेंगे? कंट्रोल N करेंगे, ठीक है। कंट्रोल N से न्यू फाइल खुल जाएगी और कंट्रोल O से सिंपल फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने फाइल क्लोज करनी हो तो कंट्रोल W दबाओ, ठीक है। फाइल क्लोज करनी हो कंट्रोल W दबाओ, ठीक है। सेव एज करना हो तो F12 दबाओ, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सेव एज करना हो कोई फाइल तो वर्ड में F12 दबाओ, ठीक है ना, F12। अगर सिंपल सेव करना हो तो फिर आप सिंपल कंट्रोल S कर सकते हो या कंट्रोल S कर सकते हो या शिफ्ट प्लस F12 कर सकते हो, ठीक है ना। अगर सिंपल सेव करना हो फिर कंट्रोल S या शिफ्ट प्लस F12 कर सकते हो, ठीक है ना। सेव एज के लिए F12 और सिंपल सेव के लिए कंट्रोल S या शिफ्ट F12, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो है कंट्रोल F2 दबाते हैं। ऊपर F12 था ना सेव एज के लिए, लेकिन अब प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है, ठीक। कंट्रोल F2 से। अच्छा, प्रिंट निकालने के लिए सिंपल कंट्रोल P दबाओ, ठीक है ना। अच्छा, अगर टू शो और हाइड पैराग्राफ सिंबल्स, अगर कोई पैराग्राफ में जो है सिंबल्स हैं उनको अगर शो करना है या हाइड करना है तो क्या करना है? कंट्रोल प्लस एस्ट्रिस्क, वो जो स्टार सा होता है ना, ठीक है। कंट्रोल के साथ वो स्टार पे क्लिक करो, वो जो एस्ट्रिस्क बना होता है, ठीक है ना। तो जितने भी सिंबल्स हैं उसमें पैराग्राफ में वो शो या हार्ड हो जाएंगे, ठीक है, कंट्रोल स्टार से, ठीक है। देन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए F7 दबाओ, ठीक है। स्पेलिंग और ग्रामर ठीक करने के लिए F7 से स्पेलिंग और ग्रामर के लिए F7 दबाओ, ठीक है ना। हेल्प चाहिए तो F1 दबाओ, स्पेलिंग और ग्रामर के लिए F7 दबाओ, ठीक है। हेल्प के लिए F1। अगर कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो सिंपली कंट्रोल F दबाओ तो फाइंड हो जाएगी कोई चीज़, ठीक है ना। अगर रिप्लेस करना हो तो कंट्रोल H करो, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर रिप्लेस करना हो कुछ तो कंट्रोल H दबाओ, ठीक है ना। रिप्लेस करना हो कंट्रोल H से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर गो टू ऑप्शन जो होता है ना, गो टू ऑप्शन, तो उसमें सिंपली कंट्रोल G दबाओ तो गो टू ऑप्शन हो जाएगा उसमें, ठीक है। गो टू ऑप्शन कंट्रोल G से, ठीक है ना, G फॉर गोट, ठीक है ना, कंट्रोल G से गो टू। देन सेलेक्ट ऑल आर इंटायर डॉक्यूमेंट के लिए हम कंट्रोल A दबाएंगे, कंट्रोल A से पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट फ्रॉम कर्सर टू बिगनिंग ऑफ लाइन, ठीक है। तो इस हाँ, जहाँ पे कर्सर है वहाँ से हमने लाइन के बिगनिंग में अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो सिंपल कंट्रोल होम दबाएंगे, ठीक है ना। कंट्रोल और होम वाला बटन दबाएंगे और जहाँ पे कर्सर है वहाँ से लेकर
जो है लाइन की बिगनिंग तक सब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कंट्रोल होम से। नेक्स्ट इज हाँ, सिलेक्ट फ्रॉम कर्सर टू एंड ऑफ लाइन, ठीक, कर्सर है जहाँ पे वहाँ से लेकर लाइन के एंड तक करना हो तो सिंपली कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड दबाओ, ठीक है। शिफ्ट होम, हाँ शिफ्ट होम दबाओगे तो जो है कर्सर से लाइन बिगनिंग ऑफ द लाइन तक सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और शिफ्ट एंड दबाओगे तो जहाँ पे कर्सर है वहाँ से जो है एंड लाइन तक जो है सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर गो टू द बिगनिंग ऑफ लाइन तो सिंपली होम वाला बटन दबाओ, ठीक है, होम वाला की स्ट्रोक करो, होम वाला, तो बिगनिंग ऑफ द लाइन पे चले जाओगे MS वर्ड में, ठीक है। और गो टू एंड ऑफ लाइन, अगर लाइन के एंड में जाना है तो सिंपल एंड वाला बटन दबाओ, ठीक है। होम वाला बटन दबाया तो बिगनिंग ऑफ द लाइन में चले गए, एंड वाला बटन दबाया सिंपली तो एंड ऑफ द लाइन में चले गए। देन गो टू बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके बिगनिंग में जाओ, सिंपल कंट्रोल होम दबाओ, ठीक है। गो टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एंड दबाओ, ठीक है। अच्छा, कट करना हो कंट्रोल X से हो जाएगा, ठीक है ना। कॉपी जो है ये कंट्रोल C से हो जाता है, पेस्ट कंट्रोल V से होता है, अनडू जो है कंट्रोल Z से, अगर कोई चीज़ अनडू करनी है कंट्रोल Z से हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ रीडू करनी है तो ये कंट्रोल Y से होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अनडू करने के लिए, एक्शन बैक लेने के लिए, रिवर्स करने के लिए कंट्रोल Z, और रीडू करने के लिए कंट्रोल Y का ऑप्शन जो है वो चाहिए होता है, ठीक है ना, रीडू के लिए। तो अभी मैंने बताया था कि अनडू क्या होता है, इट रिवर्सेस द लास्ट कमांड, और रीडू जो होता है इट रिवर्सेस द एक्शन ऑफ द लास्ट कमांड, ठीक है। हाँ, तो अनडू कंट्रोल Z से, रीडू जो है कंट्रोल Y से होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेट पेंटर, FORMAT, फॉर्मेट पेंटर PAINTER, ठीक है ना। फॉर्मेट पेंटर निकालना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड C, कंट्रोल शिफ्ट और C दबाना है, फॉर्मेट पेंटर आ जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल भी दबाना है, शिफ्ट का बटन भी और C का बटन भी, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट C जो है इससे क्या होगा कि फॉर्मेट पेंटर आ जाएगा, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट C से। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। देन लेफ्ट अलाइनमेंट करना हो तो सिंपली कंट्रोल प्लस L कर दो, कंट्रोल प्लस L, L मीन्स लेफ्ट, ठीक है, कंट्रोल और L, कंट्रोल L से जो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाता है, कंट्रोल E से सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है, कंट्रोल R से जो है राइट अलाइनमेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, लेफ्ट और राइट का तो सिंपल पता है, आता है कंट्रोल L कंट्रोल R से, लेकिन सेंटर वाला अलाइनमेंट कंट्रोल E से होता है, ठीक है। देन जस्टिफाइड, अगर जस्टिफाइड करना हो तो कंट्रोल J करो, ठीक है, कंट्रोल J से जस्टिफाइड, ठीक है। अच्छा, देन डिलीट प्रीवियस वर्ड, अगर जो है प्रीवियस वर्ड जो डिलीट करना है सिंपली कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल और बैक स्पेस दबाओ तो प्रीवियस वर्ड जो है, प्रीवियस MS वर्ड जो है वो डिलीट होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल बटन दबा के बैक स्पेस का बटन दबाओ तो प्रीवियस वर्ड जो है वो डिलीट होगा। देन अप्लाई बुलेटेड लिस्ट, अगर बुलेटेड लिस्ट अप्लाई करनी है तो क्या करना है हमको, कंट्रोल शिफ्ट प्लस L, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस L दबाएंगे, अप्लाई बुलेटेड लिस्ट, ठीक है। अगर इंडेंट करना हो इंडेंट करना हो सिंपली कंट्रोल M दबाएंगे, ठीक है ना, कंट्रोल M से इंडेंटिंग हो जाएगी, इंडेंट करना है कंट्रोल M से हो जाएगा, ठीक है। देन अगर पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल प्लस इंटर, ठीक है, कंट्रोल प्लस इंटर दबाने से पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, पेज ब्रेक जो है कंट्रोल इंटर से होगा, ठीक है। देन फ्रंट फेस जो है ना, फ्रंट फेस जो है ये कैसे होगा, कंट्रोल शिफ्ट और F दबाने से फ्रंट फेस आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और F, ठीक है, इनसे फ्रंट फेस आ जाएगा। हाँ, और उसके बाद अगर फ्रंट का साइज़ करना हो, ठीक है ना, तो फ्रंट का साइज़ तो कंट्रोल शिफ्ट और P, ठीक है। अगर फ्रंट का फेस देखना हो मतलब कैसा दिखेगा तो कंट्रोल शिफ्ट और F मीन्स फेस, ठीक है। और अगर फ्रंट का साइज़ करना हो सही तो वो कैसे होगा, कंट्रोल शिफ्ट और P से, कंट्रोल शिफ्ट और P दबाएंगे, ठीक है ना। हाँ, P का ये मतलब नहीं यहाँ पे के सेव हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट P से जो है फ्रंट साइज आएगा, ठीक है। हाँ, अगर बोल्ड करना हो सिंपली कंट्रोल B दबाओ, ठीक है, कंट्रोल प्लस B दबाओ बोल्ड। इटैलिक्स करना हो कंट्रोल प्लस I, ठीक है, कंट्रोल I करो इटैलिक्स हो जाएगा, कंट्रोल B करो बोल्ड हो जाएगा।
अच्छा, अगर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू करो, ठीक है ना। हाँ, इटैलिक्स करना है कंट्रोल आई, अंडरलाइन करना है कंट्रोल यू। अगर डबल अंडरलाइन करना है तो तब क्या होगा, तब कंट्रोल शिफ्ट और डी से होगा, ठीक है। डबल अंडरलाइन जो है वो कैसे होगा, कंट्रोल शिफ्ट और डी से। हाँ, सिंपल अंडरलाइन करना है कंट्रोल यू दबाओ, और अगर डबल अंडरलाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और डी। अब यू नहीं करना, अब डी, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट और डी दबाएंगे, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। सिंपल अंडरलाइन जो है वो एक बार अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू से, और डबल अंडरलाइन करना है कंट्रोल शिफ्ट और डी से, ठीक है। अगर वर्ड को अंडरलाइन करना है, ठीक है, अगर वर्ड को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ए से, ठीक है। हाँ, एमएस वर्ड को अगर अंडरलाइन करना है पूरे को, ठीक है ना, तब जो है कंट्रोल शिफ्ट और ए से, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और ए से जो है पूरा जो है वो वर्ड अंडरलाइन होगा। देन चेंज केस जो है ये कैसे होगा, हाँ, केस अगर चेंज करना हो ये कैसे होगा, ये शिफ्ट F3 से, शिफ्ट और F3 का बटन दबाओ तो केस चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन अगर सब स्क्रिप्ट डालना हो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सब स्क्रिप्ट होता है मतलब कि जैसे कोई वर्ड के लास्ट में वो छोटी सी डैश नीचे, ठीक है, सब स्क्रिप्ट। अगर ऊपर वो छोटी सी डैश डालना हो सुपर स्क्रिप्ट, अगर नीचे तो हाँ डैश या कोई मतलब कि कोई वैल्यू लिखनी है, उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो कंट्रोल और इक्वल टू दबाओ तो सब स्क्रिप्ट आएगा, और अगर सुपर स्क्रिप्ट डालना है तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू दबाओ तो सुपर स्क्रिप्ट, और सिंपली जो है सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल इक्वल टू। तो ये मतलब कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों में इक्वल टू आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इट इज़, ठीक है। सब स्क्रिप्ट जो है, सब स्क्रिप्ट सिंपल कंट्रोल और इक्वल टू से हो जाएगा, ठीक है। और सुपर स्क्रिप्ट डालनी है तो कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू, ठीक है। देन मेक वेब पेज हाइपरलिंक, मेक वेब हाइपरलिंक। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है उसका वेब हाइपरलिंक क्रिएट करना है, सिंपल कंट्रोल के दबाओ, ठीक है। कंट्रोल के से वेब हाइपरलिंक आ जाएगा, ठीक है। देन जैसे ईमेल करते समय अगर किसी का सही ईमेल पता नहीं है, नाम से करें, कंट्रोल के दबाएंगे, हाइपरलिंक आ जाएगा। देन गो टू नेक्स्ट सेल में जाने के लिए सिंपल टैब दबाओ, ठीक है ना। हाँ, देन गो टू प्रीवियस सेल में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब, ठीक है। देन गो टू बिगनिंग ऑफ कॉलम, ठीक है। अगर कोई कॉलम है उसके ऊपर स्टार्टिंग में जाना है तो सिंपली आल्ट और पेज अप का बटन दबाना है, ठीक है। आल्ट और पेज अप का बटन दबाना है तो कॉलम के नीचे से ऊपर तक चले जाएगा, ठीक है। देन हाईलाइट टू बिगनिंग ऑफ कॉलम, ठीक है। कॉलम के बिगनिंग से हाईलाइट करो तो कैसे करेंगे हम, आल्ट शिफ्ट और पेज अप, ठीक है। आल्ट शिफ्ट और पेज अप से हाईलाइट हो जाएगा हाईलाइट टू बिगनिंग ऑफ कॉलम, ठीक है। कैसे, आल्ट शिफ्ट और पेज अप। और अगर सिंपली गो टू बिगनिंग ऑफ कॉलम तो आल्ट और पेज अप, और अगर हाईलाइट करना है बिगनिंग ऑफ पेज को तो आल्ट शिफ्ट और पेज अप, ठीक है। नेक्स्ट, और गो टू एंड ऑफ कॉलम के एंड में जाना है, कैसे जाएंगे, आल्ट और पेज डाउन से गो टू एंड ऑफ कॉलम, ठीक है। आल्ट और पेज डाउन से गो टू एंड ऑफ कॉलम। देन हाईलाइट टू एंड ऑफ कॉलम तो ये आल्ट शिफ्ट और पेज डाउन से हाईलाइट हो जाएगा एंड ऑफ कॉलम, ठीक है, आल्ट शिफ्ट और पेज डाउन से। देन गो टू बिगनिंग ऑफ रो के बिगनिंग में जाना है, सिंपल आल्ट और होम करना है। देन हाईलाइट टू बिगनिंग ऑफ रो के बिगनिंग को हाईलाइट करना है तो सिंपली आल्ट शिफ्ट और होम दबाना, ठीक है। कोई भी रो जो होती है ना, ठीक है, हाँ, रो जो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है ना, और जो है ये कॉलम जो है ये वर्टिकल होता है, ठीक है। तो अगर बिगनिंग ऑफ रो में जाना है सिंपल आल्ट और होम दबाओ, ठीक है। और अगर हाईलाइट करना है बिगनिंग ऑफ रो तो सिंपली आल्ट शिफ्ट और होम दबाना, ठीक है। उसके बाद जो है गो टू एंड ऑफ रो के एंड में जाना है, सिंपली आल्ट और एंड दबाओ, ठीक है, ठीक है ना। और अगर हाईलाइट टू एंड ऑफ रो के एंड को हाईलाइट करना है, सिंपली आल्ट शिफ्ट और एंड दबाओ, ठीक है। अच्छा, कॉलम को अगर ब्रेक करना है, कॉलम को क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर से जो है कॉलम ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कॉलम को ब्रेक करते हैं कैसे, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर से, ठीक है। देन कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट जो है, हाँ, कॉपीराइट जो है ना,
ये कैसे होगा, आल्ट कंट्रोल और सी से कॉपीराइट आ जाएगा, मतलब कि ब्रैकेट में वो सी सा आ जाएगा, ठीक है ना, अंडर ब्रैकेट में सी आएगा, मतलब कि कॉपीराइट हो गया, ठीक है ना। हाँ, अंडर ब्रैकेट में स्मॉल सी आ जाएगा, ये कॉपीराइट हो गया। ये कैसे होगा, आल्ट कंट्रोल और सी से, ठीक है, आल्ट कंट्रोल और सी से जो है कॉपीराइट हो जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आल्ट कंट्रोल और सी से कॉपीराइट का ऑप्शन, ठीक है। देन डेट फील्ड अगर करनी हो तो कैसे होगा, आल्ट शिफ्ट प्लस डी फॉर डेट, ठीक है, आल्ट शिफ्ट और डी से डेट फील्ड आ जाए। देन गो टू फुट नोट्स, ठीक है, फुट नोट्स में जाना हो क्या करेंगे, आल्ट कंट्रोल और एफ दबाएंगे तो गो टू फुट नोट्स, ठीक है। हाँ, फुट नोट्स में जाना हो कैसे करेंगे, आल्ट कंट्रोल और एफ से गो टू फुट नोट्स, ठीक है। देन शो और हाइड, ठीक है ना, शो और हाइड जो है तो ये कैसे करें, कंट्रोल शिफ्ट और 8 से, कंट्रोल शिफ्ट और 8 का बटन दबाएंगे तो जो है शो और हाइड का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सिंबल छोटा सा मतलब कि जैसे कप होता है ऐसे, ठीक है ना। शो हाइड से कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और 8 से, ठीक है। देन थियोसारस, THEASAURA, थियोसारस जो है शिफ्ट प्लस F7 से होता है, ठीक है ना, शिफ्ट और F7 दबाएंगे थियोसारस हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, या ट्राई करो, ठीक है ना, शिफ्ट F7 दबाओ, थियोसारस हो जाएगा, ठीक है। देन हाँ, अच्छा, और ये जो कॉम्बिनेशन है इनका मतलब होता है ये सारी कीज़ जो हैं वो एट अ टाइम जो है क्लिक करनी होती हैं, जैसे सेम टाइम में, जैसे अगर बोल्ड करना है कंट्रोल भी एट अ टाइम है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे MS एक्सेल, ठीक है। MS वर्ड हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे MS एक्सेल के बारे में, ठीक है ना, जिसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल डेटा डालते हैं। MS Excel is a powerful spreadsheet program through which you can create tables of any kind. These tables may contain numeric values, text data, or formulas. You can use Excel to automate simple tasks like giving list to or create sophisticated analysis tables for calculating the future trends in the stock market. The four major uses of Excel are: number one is वर्कशीट्स, नंबर 1 इज वर्कशीट्स, नंबर 2 चार्ट्स, नंबर 3 डेटाबेस, नंबर 4 वेब सपोर्ट, ठीक है ना। पहले देखते हैं ये इंपॉर्टेंट यूजेस हैं एक्सेल के। नंबर 1 वर्कशीट्स, ठीक है ना, वर्कशीट्स। हाँ, एक्सेल इज़ अ वेरी पावरफुल वर्कशीट विच इज़ ग्रेट इन ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा। हाँ, it not only allows you to store and manage data but it also allows you in analyzing and querying data, ठीक है। with this powerful spreadsheet program you can calculate, manipulate and analyze any data, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ट्स, ठीक है, चार्ट्स। Excel has an inbuilt feature which allows you to represent your data in pictorial forms called charts. It gives you a variety of options to create 2-dimensional or 3-dimensional charts, ठीक है। Then third is database, हाँ, Excel helps you not only manage your data but it also has features to analyze and query your data. You can sort your data, search for specific data or select data that satisfies a particular criteria, ठीक है। तो ये हो गया डेटाबेस। नंबर 4 इज वेब सपोर्ट, ठीक है ना, वेब सपोर्ट। Excel's web support features allows you to save books or part of workbook in HTML format, ठीक है ना, which can be viewed and manipulated in using a web browser, ठीक है ना। Also you can access real time data using web queries, ठीक है, रियल टाइम डेटा में भी एक्सेस कर सकते हैं वेब क्वेरी से, ठीक है। और मतलब कि एक्सेल का जो
वेब सपोर्ट फीचर है, ये हमें अलो करता है कि हम जो है वर्क बुक्स या पार्ट ऑफ वर्क बुक जो हैं उनको HTML फॉर्मेट में जो है वो सेव करें और उनको देखा भी जा सकता है, मैनिपुलेट भी करा जा सकता है वेब ब्राउज़र के द्वारा, ठीक है। देन इसी में है वेब सपोर्ट में। हाँ, तो ये 4 ऑप्शन हो गए, वर्कशीट्स, चार्ट्स, डेटाबेस, वेब सपोर्ट, ठीक है। देन अ स्प्रेडशीट विच इज़ आल्सो कॉल्ड अ वर्कशीट, ठीक है। स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्प्रेडशीट इज़ आल्सो अ वर्कशीट, ठीक है। वर्कशीट एक स्प्रेडशीट भी है, ठीक है ना। हाँ, a spreadsheet also called a worksheet comprises a grid of rows and columns, ठीक है। The intersection of a row and column is called a cell, ठीक है। in Excel, हाँ, जहाँ पे रो और कॉलम कट करते हैं दैट इज सेल बन जाता है, ठीक है। इन एक्सेल द रोज आर नंबर न्यूमेरिकली मीन्स 1 2 3 ऐसे रोज को नंबर दिया जाता है, ठीक है। देन एंड द कॉलम्स आर लेबल्ड एज ABC and after that they start with AB, AC, BA, BB, BC and so on, ठीक है। तो ये याद रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो रोज़ हैं, ठीक है ना, रोज़ जो हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये न्यूमेरिकली इनका नंबर करा जाता है, ठीक है ना, मतलब कि 1 2 3 ऐसे। लेकिन जो कॉलम होते हैं वो ABC ऐसे उनका नंबर होता है, ठीक है ना, कॉलम का। जब जेड तक हो जाते हैं फिर डबल होना शुरू हो जाते हैं, AB, AC, BA ऐसे ऐसे, ठीक है। देन the real power of Excel lies in its features of storing complex formulas to perform the simplest to the most complex calculations, ठीक है। in Excel you can also do mathematics with dates, ठीक है। हाँ, Excel has a user friendly graphical user interface, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, ठीक है। हाँ, Excel has a user friendly graphical user interface GUI which makes the most sophisticated tasks very simple and easy to do, ठीक है। All these inbuilt features make MS Excel a full featured powerful spreadsheet for all your data management and analysis needs. For most tasks Excel offers several ways of completing the same task, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सेल स्क्रीन लेआउट, ठीक है, कैसा होता है। हाँ, द लेआउट ऑफ MS एक्सेल स्क्रीन अलॉन्ग विद इट्स रेलिवेंट डिटेल्स इज डिपिक्टेड बिलो, ठीक है ना। हाँ, पहला देखते हैं हम एक्सेल मेन्यू, उसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्टाइल, टूल मेन्यू, ठीक है, टूल मेन्यू, तो ऐसे ऐसे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन लेआउट हम देख रहे हैं एक्सेल की, ठीक है ना। पहला हम देखेंगे एक्सेल मेन्यू, ठीक है ना। लाइक अ रेस्टोरेंट मेन्यू, अ मेन्यू इज़ अ प्रोग्राम दैट ऑफर्स यू कमांड्स दैट आर अवेलेबल टू यू टू सेलेक्ट फ्रॉम, ठीक है। MS Excel has several menus which offer group of related commands. They are, कौन कौन से इसमें जो है ये मेन्यूज होते हैं। पहला आ गया द फाइल मेन्यू, ठीक है, द फाइल मेन्यूज, ठीक है। हाँ, द फाइल मेन्यू displays the commands to open a new or an existing file, save or close the file, print and define the page settings. It also has an option to display the file properties along with the list of 4 most recently used files, ठीक है। ये हो गया फाइल मेन्यू। देन इज द एडिट मेन्यू, ठीक है, देन इज द एडिट मेन्यू। हाँ, इट डिस्प्लेज द कमांड्स टू एडिट योर टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग एंड find and replace a particular word or line. It also has an option to cut, copy and paste a part or the complete text and displays the file properties, ठीक है। ये हो गया एडिट मेन्यू। देन द व्यू मेन्यू, ठीक है, द व्यू मेन्यू displays the commands to select the toolbars to be displayed each time you open the word window, to hide or show the task pane, grid line, header, footer, पैराग्राफ मार्क्स एट्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया व्यू मेन्यू में। देन द इंसर्ट मेन्यू, ठीक है, द इंसर्ट मेन्यू डिस्प्लेज द कमांड्स टू इंसर्ट पेज ब्रेक्स, टेक्स्ट ब्रेक्स, ठीक है ना। हाँ,
This the insert menu also displays the options to insert pictures, diagrams, text boxes, files, objects, bookmarks and book hyperlinks. ठीक है. The commands of the insert menu are explained in detail below. ठीक है ना. ये insert menu. Then next is the format menu. ठीक है. Next is the format menu. हाँ, the format menu displays the commands to open a new or an existing file, save and close the file, print and define the page settings. ठीक है. This format menu also has an option to display the file properties along with the list of the 4 most recently used files. ठीक है. Format menu. Then next is the tool menu. ठीक है. Next is the tools menu. हाँ, the tools menu displays the commands to check for spelling mistakes and grammatical errors, languages, fix broken text, compare and merge documents, track changes, etc. ठीक है. Next is the data menu. ये tools menu हो गया. Next is the data menu. ठीक है ना. The data menu displays the commands to organize, sort, filter data and define the formulas for calculations in the tables. ये data menu. ठीक है. Next is the Windows menu. ठीक है ना. The Windows menu displays the option to create a new window, split an existing window or arrange all the open windows. It also displays the currently open files. ठीक है. Next is the help displays. The help. ठीक है ना. The help displays the commands to launch MS Excel help, hide or show the office assistant. ठीक है. तो ये सारा हमने जो है पढ़ा किसमें, एक्सेल मेन्यू में. अब हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में. ठीक है ना. हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग. इट अप्लाइज फॉर्मेट्स टू द सिलेक्टेड सेल्स दैट मीट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द वैल्यूज और फार्मूलाज यू स्पेसिफाई. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टाइल. स्टाइल डिफाइंस और अप्लाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेट्स कॉल्ड स्टाइल्स. ठीक है. हाँ. नेक्स्ट इज टूल्स मेन्यू. ठीक है. नेक्स्ट इज टूल्स मेन्यू. हाँ, टूल्स मेन्यू में आ गया पहला स्पेलिंग एंड ग्रामर. ठीक है ना. हाँ, दिस स्पेलिंग एंड ग्रामर इट चेक्स द राइटिंग स्टाइल, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट एंड सुजेस्ट द पॉसिबल करेक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट इज एरर चेकिंग. ठीक है. ये भी टूल्स मेन्यू में आता है. एरर चेकिंग. इट चेक्स द एक्टिव वर्कशीट फॉर एरर्स. देन स्पीच. ठीक है ना. स्पीच. हाँ, स्पीच it option it displays or removes the text to speech software. ठीक है. नेक्स्ट इज शेयर वर्कबुक. ठीक है ना. शेयर वर्कबुक. ये हम टूल्स मेन्यू में पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. हाँ, टूल्स मेन्यू. हाँ, तो नेक्स्ट इज शेयर वर्कबुक. ठीक है ना. शेयर वर्कबुक स्विचेस टू शेयर्ड वर्कबुक अकाउंट विच अलाउज यू एंड अदर यूजर्स ऑन द नेटवर्क टू एडिट एंड सेव चेंजेस टू द सेम वर्कबुक. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रैक चेंजेस. ट्रैक चेंजेस. ठीक है ना. हाँ, इट ट्रैक चेंजेस ऑप्शन. ठीक है. इट मार्क्स ऑल द चेंजेस इन योर करंट डॉक्यूमेंट एंड कीप्स अ ट्रैक ऑफ ईच चेंज बाय द रिव्यूअर नेम. ठीक है. नेक्स्ट इज कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट ऑप्शन. ठीक है ना. इन दिस बाय दिस यू कैन कंपेयर योर डॉक्यूमेंट विद एनी अदर डॉक्यूमेंट विद द ऑप्शंस टू मर्ज the two and display the changes as markup in a new document or any of the old ones. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोटेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोटेक्शन. ठीक है. हाँ, प्रोटेक्शन ऑप्शन. इट गिव्स यू दिस प्रोटेक्शन ऑप्शन गिव्स यू एन ऑप्शन टू प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ योर ऑनलाइन form except as specified. ठीक है. This protection it also gives you the option to protect it with the password so that any user can make changes to the document, mark revisions or fill in the online form. ठीक है. ये हो गया प्रोटेक्शन में. देन ऑनलाइन कोलैबोरेशन. ठीक है. ये सारा टूल्स मेन्यू में पढ़ रहे हैं हम. ऑनलाइन कोलैबोरेशन. ठीक है. This option, it starts a spontaneous online net meeting by sending an invitation to other participants who are also online using Microsoft Net meeting on their computers. This online collaboration it also has the feature of scheduling an online meeting by using names from the address book of your email program and displays the discussion
and displays the discussions toolbar where you can insert a new discussion. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज गोल सीक. नेक्स्ट हेडिंग इज गोल सीक. ठीक है ना. ये भी एक टूल्स मेन्यू का एक ऑप्शन है, गोल सीक. ठीक है. दिस गोल सीक एडजस्ट द वैल्यू इन द स्पेसिफाइड सेल अंटिल अ फार्मूला दैट इज डिपेंडेंट ऑन दैट सेल रीचेज द टारगेट वैल्यू. ठीक है ना. नेक्स्ट इज सिनेरियोज. नेक्स्ट इज सिनेरियोज. ठीक है. हाँ, टूल्स मेन्यू में ही आता है. ठीक है ना. This scenarios option, it creates and saves scenarios which are sets of data you can use to view the results of what. ठीक है. if analysis. हाँ, नेक्स्ट इज फार्मूला एडिटिंग. ठीक है. फार्मूला एडिटिंग ऑप्शन. ठीक है ना. इट ड्रास ट्रेसर एरोज फ्रॉम द सेल दैट कॉपी वैल्यू डायरेक्टली टू द फार्मूला इन द एक्टिव सेल एंड वाइस वर्सा. ठीक है. दिस फार्मूला एडिटिंग ऑप्शन, इट आल्सो ड्रास ट्रेसर एरोज ऑन एरर वैल्यूज. ठीक है. इट डिस्प्लेज द एडिटिंग टूल बार वेयर यू हैव द options to evaluate the formula one step at a time and shows or hides error value tracers error. ठीक है ना. tracers arrow. ठीक है. ये हो गया फार्मूला एडिटिंग. नेक्स्ट इज टूल्स ऑन द वेब. टूल्स ऑन द वेब. ठीक है ना. हाँ, इट कनेक्ट्स यू टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स अवेलेबल ऑनलाइन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेटेड ई सर्विसेज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज मैक्रो. व्हाट इज मैक्रो. ठीक है ना. मैक्रो इज अ सीरीज ऑफ एक्शन विच यू कैन रिकॉर्ड फॉर repetitive sets of commands. With the macro dialog box you can edit, run or delete a macro. ठीक है. हाँ, with the macro dialog box, जो macro dialog box होता है ना, मैक्रो डायलॉग बॉक्स, उसके ज़रिए जो है हम एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं किसी मैक्रो को. ठीक है. मैक्रो डायलॉग बॉक्स है. यू कैन रिकॉर्ड अ न्यू मैक्रो इन द विजुअल बेसिक एडिटर आल्सो. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम एड्स इन ऑप्शन. ठीक है. एड्स इन, ये सारे टूल्स मेन्यू में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. एड्स इन्स. ठीक है. हाँ, एड इन्स ऑप्शन, इट अटैचेज अ डिफरेंट टेम्पलेट टू द एक्टिव डॉक्यूमेंट विद एन ऑप्शन टू लोड एड इन प्रोग्राम्स एंड अपडेट डॉक्यूमेंट स्टाइल. ठीक है ना. हाँ, नेक्स्ट हेडिंग इज ऑटो करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है. ऑटो करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है. हाँ, इट करेक्ट्स द ऑप्शन टू ऑटोमेटिकली correct text as soon as you type an error, and it also stores and reuses frequently used text. ठीक है. नेक्स्ट इज customized option. ठीक है ना. Customized options gives you an option to customize toolbar buttons, menu commands and shortcut key assignments, including the icon size, font and the menu animation etc. ठीक है ना. नेक्स्ट हेडिंग. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है MS एक्सेस. ठीक है. हमने अभी MS वर्ड, MS एक्सेस दोनों पढ़ लिए. अब पढ़ेंगे MS एक्सेस के बारे में. ACCESS MS एक्सेस. ठीक है ना. हाँ, MS एक्सेस इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट टूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है. दिस इज़ गिवन विद MS ऑफिस पैकेज. ठीक है. MS ऑफिस पैकेज में दिए गए. ठीक है ना. There is a need for database management tools like Access for all corporate and private organizations etc. where large amount of data has to be handled. ठीक है. ये database management tool है. ठीक है ना. हाँ, when large amount of data is being saved and processed the name database is used. ठीक है. जब बहुत जो है when large amount of data is being saved and processed, और बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो सेव और प्रोसेस करा जाता है, तब जो है नाम जो है ये डेटाबेस यूज़ करा जाता है. ठीक है ना. हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग द स्टोर डेटा टू द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट है क्या? ये एक प्रोसेस है जो भी डेटा स्टोर है तो उसको मैनिपुलेट करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनिपुलेट करना का प्रोसेस. ठीक है. उसको डेटाबेस मैनेजमेंट बोलते हैं. Databases are designed to offer an organized mechanisms for storing, managing and retrieving information. ठीक है. हाँ, बेसिकली
हाँ, मतलब डेटाबेस डिज़ाइन इसलिए हैं ताकि ये ऑफ़र करें एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। हाँ, बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द फंक्शंस ऑफ डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ठीक है ना। ऑन सम ओकेजन्स डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस मे बी एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। MS Access is a perfect tool to do all these kinds of functions, ठीक है। MS Access is a perfect tool to do all these kinds of functions, ठीक है। Now next is advantages of MS Access। MS Access के फ़ायदे क्या हैं? Advantages of MS Access, ठीक है। हाँ, MS Access has very easy operating procedure compared to other database management tools that are available, ठीक है। Also this is fairly cheaper and can be installed in most of the computers, ठीक है। Another advantage is that this MS Access provides excellent graphical user interface, GUI graphical user interface, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाँ, another advantage of MS Access is it provides excellent GUI, means it provides excellent graphical user interface, whereas most database management tools provide console operating interface, CUI, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। कि MS Access का एक और फ़ायदा ये है कि ये एक एक्सीलेंट GUI प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके बरक्स अगर हम देखें तो जो ज़्यादातर जो डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स होते हैं वो CUI प्रोवाइड करते हैं, मींस कंसोल ऑपरेटिंग इंटरफेस, CUI कंसोल ऑपरेटिंग इंटरफेस, ठीक है ना। और MS Access GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। देन दिस फीचर क्रिएट्स एक्सीलेंट यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट। हाँ, then table creation for database management is easily done here. This is direct interaction with the tables creating. This is direct interaction with tables created and editing are possible, ठीक है। Table creation is done directly by typing its name, property, etc. This leads to easy operation. Whereas other have complex syntaxes for creating these, ठीक है। there is no need for the user to have high programming knowledge for using MS Access, so users with basic computer knowledge can use it, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज स्पेशल फीचर्स ऑफ MS Access, ठीक है। स्पेशल फीचर्स ऑफ MS Access, हाँ, टेबल क्रिएशन इज सिंपली डन बाय डिज़ाइन और विजार्ड ऑप्शंस, WIZARD विजार्ड ऑप्शंस, ठीक है। डेटा इंटर्ड एंड स्टोर इन MS Access कैन ईजिली बी एक्सपोर्टेड और पेस्टेड इनटू स्प्रेडशीट्स फॉर statistical software for further analysis, ठीक है। as part of the MS Office suite, MS Access integrates seamlessly with MS Word and Excel. Any data stored in MS Access can be easily used throughout MS Office applications, ठीक है। For example, names and addresses that are stored in an Access database can be imported and used in MS Word directly, ठीक है। हाँ, the real advantage of MS Access is its relational ability that allows users to join tables using fields common to both, ठीक है, thereby allowing users to extract data from one table that relates to data in another, ठीक है। Data from separate tables can easily be joined to produce a new file for further analysis. New function named forms provide, हाँ, न्यू फंक्शंस नेम्ड फॉर्म्स का जो नाम का जो नया फंक्शन है, इट प्रोवाइड मीन्स टू डेवलप डेटा एंट्री इंटरफेस फॉर यूजर्स। द रिपोर्ट राइटर फंक्शन, ठीक है, द रिपोर्ट राइटर फंक्शन इन MS Access इज़ वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल, ठीक है। द स्टोर्ड डेटा कैन बी गिवन इन अ वंडरफुल फॉर्मेट टू टेक प्रिंट और एनी अदर पर्पस, ठीक है। Another aspect of ensuring valid data is making sure that there is no data duplication. The development environment that MS Access provides supports rapid application development, ठीक है।
इन जनरल यूजर्स विद लिटिल प्रोग्रामिंग नॉलेज कैन यूज MS Access इफेक्टिवली, ठीक है. देयर आर यूजफुल मेन्यूज लाइक फाइल एडिट एट्सेट्रा टू प्रोवाइड यूजर्स अ वेरी इफेक्टिव यूसेज ऑफ गुड डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है. देयर इज no console window, no complex syntaxes and no complex queries for MS Access, ठीक है. हाँ, these are common characteristics of most of the database management tools. So MS Access is a very effective database management tools without any normally occurring distractions of a common database management tool. As this comes with MS Office, this is readily compatible all the day-to-day office needs. Functions like data input, storage and retrieval can be easily and effectively done. Hence we can say that MS Access is a reliable and very effective database management tool of MS Office package, ठीक है. तो ये सारा हमने MS Access के बारे में पढ़ा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हम शुरू करेंगे दैट इज़ MS पावरपॉइंट, ठीक है. MS पावरपॉइंट के बारे में अब हम पढ़ेंगे. MS PowerPoint, ठीक है ना. MS PowerPoint is a presentation tool used to create effective and eye-catching presentations in a matter of minutes, ठीक है. हाँ, it gives you a step-by-step creation of a simple presentation besides introducing you to the various features available in PowerPoint, ठीक है. PowerPoint it also details the way in which you could make your presentation attractive by changing the font, means type, size and color, adding pictures, diagrams and animations, ठीक है. Now PowerPoint presentation, ठीक है, वो कैसा होता है PowerPoint presentation, ठीक है. हाँ, Microsoft PowerPoint means MS PowerPoint is a powerful tool to create professional looking presentations and slide shows, ठीक है. A presentation or a slide show comprises individual slides arranged in a sequential manner. Typically one slide covers a brief topic, ठीक है. PowerPoint allows the user to incorporate images, video and colorful backdrops to the information on screen, ठीक है. Having prepared the presentation, you can present it to a small team or a large audience, ठीक है. It creates great visuals, making it easy to communicate your ideas effectively, ठीक है. With PowerPoint, your bright ideas can turn into brilliant presentations, ठीक है. Then easy for beginners to learn and use. Microsoft PowerPoint can also be adapted to meet the needs of more experienced users, ठीक है. Since PowerPoint is a member of the Office family of programs that look and work alike, once you learn one program, you can work on any one of them with ease, ठीक है. The next page shows the layout of a PowerPoint screen. It is important to familiarize yourself with the various toolbars available with Microsoft. It is important to familiarize yourself with the various toolbars available with PowerPoint and get an understanding of how to create and run a simple presentation. All these are presented in subsequent pages of this unit, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज़ स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट. कैसे स्टार्ट करें, ठीक है ना. हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट कैन बी स्टार्टेड इन वन ऑफ द टू वेज. नंबर वन, बाय डबल क्लिकिंग ऑन द माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट आइकन ऑन द डेस्कटॉप. नंबर सेकंड, select start all programs, then Microsoft PowerPoint. Sorry. An active PowerPoint window has the following items, ठीक है. एक एक्टिव PowerPoint विंडो में कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जिनमें आ गया टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार, स्क्रॉल टूल्स, स्टेटस बार, ठीक है, ये होते हैं. अभी इनके बारे में एक एक करके डिटेल में देखते हैं. पहला आ गया टाइटल बार, ठीक है. MS पावरपॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है. एक्टिव पावरपॉइंट विंडो में ये फीचर्स होते हैं, ठीक है.
पहला आ गया टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार डिस्प्लेस विच एप्लीकेशन पैकेज इज रनिंग इन द नेम ऑफ द पावर पॉइंट फाइल करंटली ओपन, ठीक है, ये टाइटल बार में है। देन मेन्यू बार, ठीक है ना। मेन्यू बार इज द ट्रेडिशनल विंडो स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू. If you click on any of the options available on the menu bar, it displays the commands available under that menu. Alternatively, this menu can also be activated by pressing the access key from the keyboard. For example, Alt F is used to activate the file menu. Alt F is used to activate the file menu. Then Alt E is used to activate edit menu. Alt V is to activate the view menu and so on, ठीक है ना। तो ये जो तीन फार्मूले बताए जो कि पावर पॉइंट में यूज़ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला कंट्रोल F, इट इज़ यूज टू एक्टिवेट द फाइल मेन्यू, ठीक है, कंट्रोल F। देन सॉरी Alt F, ठीक है ना, कंट्रोल नहीं, Alt F यूज टू एक्टिवेट द फाइल मेन्यू। देन Alt E is used to activate the edit menu. Then Alt V is used to activate the view menu, ठीक है ना। हाँ, यह मेन्यू बार में पढ़ना है, ठीक है ना। Once the drop down is displayed in the menu bar, you can click on the desired command to execute it. You will notice that some of these commands have ellipses, means तीन जो हैं वो डॉट्स होंगे in front of them. This represents that these commands have further sub command, ठीक है। आप देखोगे कुछ कमांड्स के आगे तीन एलिप्सिस होंगे मतलब तीन डॉट्स होंगे, तो वो ये शो करता है कि इन कमांड्स के आगे सब कमांड्स भी हैं, ठीक है ना। हाँ, एलिप्सिस से ये जो है शो होता है। देन also some of the menu commands will be dimmed, dimmed will be dimmed, which means that they cannot be executed unless the prerequisite function for that command is performed. For example, you cannot use the copy or cut command from the edit menu unless you have selected a piece of text or item, ठीक है। तो ये मेन्यू बार के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में, ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में, ठीक है। Standard toolbar, it contains buttons and other controls that help you to execute a variety of PowerPoint commands without having to go through the menus, ठीक है। The standard toolbar contains icons for basic functions like opening a new or existing file, saving a file, printing a file, cut, copy, paste, etc, ठीक है, standard toolbar। Next heading is formatting toolbar, ठीक है, formatting toolbar bar contains icons to change the way your text looks, ठीक है। formatting toolbar contains icons to change the way your text looks. It is also known as formatting, ठीक है। It is also known as formatting your text, ठीक है। changing fonts, text size, color, changing fonts, text size, color, style, alignment can be done using icons contained in this formatting toolbar, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राइंग टूल बार, ठीक है। हमने फॉर्मेटिंग टूल बार पढ़ लिया, अब ड्राइंग टूल बार के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, ड्राइंग टूल बार, इट अलाउज यू टू इनहेंस योर प्रेजेंटेशन बाय एडिंग शेप्स एंड पिक्चर्स, ठीक है। pictures, also allowing you to change the size, color, etc of these, ठीक है। The drawing toolbar, as the name suggests, contains icons to add drawings and pictures to your presentation, ठीक है। ये हो गया ड्राइंग टूल बार। नेक्स्ट इज स्क्रॉल टूल्स, ठीक है ना। हाँ, scroll tools help you move within your presentation. You can move up and down, left and right in your presentation in two ways, using the horizontal and the vertical scroll bars with the help of a mouse, or by using keyboard page up or page down, home and arrow keys, ठीक है। पेज अप के लिए PGUP लिखते हैं, पेज डाउन के लिए PGDN, ठीक है ना। देन होम का बटन, एंड का बटन, एरो का बटन, ठीक है। इनसे जो है हम क्या कर सकते हैं, क्या लेफ़्ट राइट अप डाउन जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्क्रॉल टूल्स, ठीक है, MS पावर पॉइंट में। नेक्स्ट इज स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार MS ये पावर पॉइंट में, ठीक है ना।
स्टेटस बार, ठीक है। नॉर्मली स्टेटस बार इज द लास्ट लाइन ऑन द स्क्रीन एंड डिस्प्लेज द करंट स्लाइड नंबर एंड द डिज़ाइन टेम्पलेट बीइंग यूज्ड, ठीक है। टेम्पलेट इज अ प्री डिफाइंड आउटलाइन दैट विल बी एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द स्लाइड्स अनलेस चेंज, ठीक है। दिस आउटलाइन स्टेटस बार की दिस आउटलाइन इंक्लूड्स फीचर्स लाइक कलर स्कीम, फॉन्ट्स, डिफ़ॉल्ट टाइटल्स एटसेट्रा, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो है पावर पॉइंट का भी ख़त्म हो गया। तो हमने जो है ये 4 एप्लीकेशंस पढ़ी, MS वर्ड, MS एक्सेस एंड MS पावर पॉइंट, ठीक है। पहला MS वर्ड, सेकंड MS एक्सेल, तीसरा MS एक्सेस, चौथा MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो अब हम जो है इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेट के बारे में, ठीक है ना। इंटरनेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये ऐसा करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसके बाद जो वाली जो मतलब कि इसके बाद जो सीरीज़ में जो आएगी वीडियो, उसमें जो है मैं इंटरनेट के बारे में इंटरनेट और PDF फाइल के बारे में पूरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसको इस दर ही ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।